Hello student, welcome back in another video of class 12th biology human reproduction. In last lecture we studied about male reproductive system, spermatogenesis, spermiogenesis and hormonal control of male reproductive system. In this lecture we are going to talk about female reproductive system. So let me start female reproductive system. In this lecture we study about the structure of female reproductive system, the parts which are present in the female reproductive system, external part of female reproductive system and internal part of the female reproductive system. So in this diagram I show the internal part of the female reproductive system. The female reproductive system consists of one pair of ovaries and one pair of oviduct. It is also known as fallopian tube. क्या बोलते हैं इनको? fallopian tube भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इनको? ओविडक्ट भी बोल सकते हैं. एक पेयर ऑफ ओविडक्ट होती है, fallopian tubes होती है और वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है. और जो ओवरीज होती है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है, यानी लोअर एब्डोमेन में 2 ओवरीज पाई जाती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. ओके, यूटेरस, वन यूटेरस, वेजाइना, cervix. Okay, these are the internal part of the female reproductive system. In this diagram you observe that 2 ovaries are present. These green colors are ovaries are present which are attached with the perimetrium. Perimetrium is the part of uterus. The outermost layer of the uterus is known as perimetrium. The outermost layer of uterus is known as perimetrium. Inside the perimetrium myometrium is present. Okay, inner side of the perimetrium myometrium is present, or inner side of the myometrium the endometrium is present. The inner wall of the uterus is known as endometrium. When we study about menstruation cycle, then I told you about what is endometrium. Okay, because this endometrium is breakdown during the menstruation cycle. When we study about menstruation cycle or hormonal regulation of menstruation cycle, then we talk about endometrium. Okay, and this tube like structure which arises from the upper part of the uterus is known as fallopian tube, or it is also known as oviduct. ये fallopian tube 3 parts से मिलकर बनी हुई है. This fallopian tube is consisted of 2 parts. First is isthmus, the starting point from the uterus. This is the starting point of the uterus is known as isthmus. Okay, and the middle broad part of the fallopian tube is known as ampulla. Where fertilization is occur. It is a neat question. In which region of the fallopian tube the fertilization is occur? In the ampulla region of the fallopian tube fertilization is occur. Next part is known as infundibulum. This infundibulum parts having some finger like projection which are covering the ovaries. These are known as fimbriae. Okay, infundibulum part having some fimbriae or finger like projection which cover the ovaries. Okay, so fallopian tube consists of 3 parts. First part is isthmus, second part is ampulla, and third part is infundibulum. Infundibulum having fimbriae which cover the ovaries. Okay, now this part is known as uterus. Where the baby is developed after fertilization, after the zygote is enter into the after cleavage, the blastula and gastrula, after embryogenesis is occur in the uterus region and the baby is developed in the uterus region. The upper part of the uterus is known as fundus. Okay, upper part of the broad part of the uterus is known as fundus. Okay, the uterus is open into vagina by cervix. Okay, one pore like structure is present. This is known as cervix, which is open into vagina, and vagina open into outside the body. Outside the body vagina having some external genitalia. These are known as labia minora and labia majora.
मेजोरा विच आर प्रेजेंट द एज ए एक्सटर्नल जेनिटेलिया. आउटर साइड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एक्सटर्नल genitalia which are present on the vagina. So it is a diagrammatic representation of the female reproductive system. Now we discuss about the how the ovum are formed, यानी ओवम कैसे बन रहे हैं ओवरी के अंदर. ठीक है, इट इज़ ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल ईजी मेथड है, लेकिन इस oogenesis को समझने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, लेकिन मैं उसको ईजी वे के अंदर आपको समझाता हूँ. आपको एनसीईआरटी के अंदर एक सिंपल डायग्राम दिया हुआ है, सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी oocytes. लेकिन ये बन कैसे रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है और टर्शरी फॉलिकल क्या है, इन सभी की अपने स्ट्रक्चर देखते हैं. एक सिंपल डायग्रामेटिक देखते हैं. oogenesis होता क्या, oogenesis मतलब ऊ मीन्स ओवम, जेनेसिस मीन्स जनरेशन, यानी कि ओवम की जनरेशन किस टाइप से हो रही है यूट्रस के ओवरीज के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, oogenesis. और हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल रेगुलेशन होता है यहाँ पे, और हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर oogenesis होता है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देन वी स्टडी अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. oogenesis मीन्स ओवम जनरेशन. ओके, अब ये एक मेथड है सिंपल, oogonia. oogonia इज ऑल्सो नोन एज गैमीट मदर सेल. इट इज़ कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte एंड वन पोलर बॉडी. ओके, एंड सेकेंडरी oocyte आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज़ कन्वर्ट इनटू मैच्योर ओवम. एक सिंपल मेथड है, लेकिन अब ये एक सिंपल मेथड ना होकर एक वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. यानी कि किस टाइप से हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा जन्म से पहले ही क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है. यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है, फोइटस है, गर्ल फोइटस है बॉडी के अंदर, तो उसी टाइम क्या होता है, ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है. यानी जब वो 20 वीक का जो फोइटस होता है मदर के यूट्रस के अंदर, और वो क्या है, एक गर्ल फोइटस है, तो उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है. oogenesis स्टार्ट हो जाता है, यानी कि oogonia बन जाते हैं. ठीक है, मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं. ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, प्यूबेरिटी के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है. वो कैसे होता है उसकी स्टडी करते हैं अपने. इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड. थोड़ा ध्यान से बस एक बार इस लेक्चर को सुन लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और नीट के अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. नीट के अंदर क्वेश्चन उठाता है यहाँ से. ठीक है, सिंपल सी oogonia, या इसको बोल सकते हैं ओगोनियम, या बोल सकते हैं oogonia. ए मिलियंस ऑफ ओगोनियम्स आर ओरिजिनेटेड इन द गर्ल फोइटस. यानी कि गर्ल फोइटस के अंदर बहुत ज़्यादा oogonia बनते हैं, मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं. ठीक है, अब ये oogonia क्या होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं. किस में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, प्राइमरी oocyte में ये कन्वर्ट हो जाते हैं. oogonia क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, यानी 2n होते हैं. और प्राइमरी oocyte भी क्या होते हैं, ये भी डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, 2n होते हैं. ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पकड़ने वाला है. प्राइमरी oocyte भी क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर, और oogonia भी क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर. oogonia को आप सिंपल बोल सकते हैं एक जर्म सेल्स. ठीक है, मदर सेल बोल सकते हैं, जो स्टार्टिंग सेल होती है, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, किसकी, oogenesis की स्टोरी स्टार्ट हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, oogonia से स्टार्ट हो रही है. तो oogonia किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. तो ये जो फेज़ होती है oogenesis की, इस फेज़ को बोलते हैं मैच्योरेशन फेज़. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज़, सॉरी मल्टीप्लिकेशन फेज़, ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ होती है. इसके बाद आती है ग्रोथ फेज़. ठीक है, प्राइमरी oocyte बन गया. अब क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte, इसके अंदर कौन सा डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है. ये पॉइंट यहाँ देखने वाला है, मियोसिस फर्स्ट होता है. और ये कब हो रहा है, ये फोइटल स्टेज के अंदर हो रहा है, जब गर्ल फोइटस है यूट्रस के अंदर, अपनी मदर के यूट्रस के अंदर, तभी ये प्राइमरी oocyte बन जाते हैं. मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे. ठीक है, कहाँ पे, फोइटल स्टेज के अंदर. अब फोइटल स्टेज के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन ये क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है. होल्ड कब होता है, ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये होल्ड हो जाता है. यानी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है,
प्रोफेज फर्स्ट तक पहुंच जाता है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी क्या होता है, जो लेप्टोटिन स्टेज होती है, जो मैंने 11th क्लास में आपको स्टडी करवाई थी, लेप्टोटिन स्टेज के अंदर 5 सब फेजेस होती है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, ओके, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटिन में जाकर ये मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, होल्ड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अब किसी भी टाइप का कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या करता है ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, ग्रोथ करता है। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। मियोसिस फर्स्ट होल्ड हो चुका है और ये कब हो रहा है, फॉइटल स्टेज के अंदर ही चल रहा है ये मेथड। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब जब बर्थ हो जाती है, बच्चे की बर्थ हो जाती है, गर्ल चाइल्ड क्या होता है, बर्थ हो जाती है, वहाँ से लेकर जब तक प्यूबेरिटी पीरियड स्टार्ट नहीं होता, जब तक प्यूबेरिटी पीरियड स्टार्ट नहीं होता उस पीरियड को बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, फॉलिकुलर एट्रेशिया का मतलब होता है अब नंबर क्या होने लग जाते हैं, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं इनके नंबर। एक मिलियंस ऑफ oogonia बने थे, बहुत ज़्यादा oogonia बने थे, लेकिन धीरे धीरे उनके नंबर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे प्राइमरी oocytes है, ठीक है, मिलियंस ऑफ oocyte पड़े थे, यहाँ पे oocyte बन चुके हैं। अब ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने चारों ओर एक लेयर बनाते हैं, मतलब एक आउटर कवरिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट आउटर कवरिंग के बाद ये क्या बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल मान लीजिए ये क्या था, प्राइमरी oocyte था, इसके चारों ओर क्या हो गया, एक लेयर बन गई। ठीक है, फॉलिकुलर लेयर बन गई, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल का नंबर जो एनसीईआरटी में दिया वो 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, oogonia कितने थे, मिलियंस ऑफ oogonia, लेकिन प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर कितना रह गया, 60,000 to 80,000। तो ये नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, नंबर रिड्यूस हो रहा है, ये धीरे धीरे आगे रिड्यूस होता जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेशिया बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेशिया बोलते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, फॉलिकल क्या करता है, अपने चारों ओर एक और लेयर बना लेता है। ठीक है, एक और लेयर बनाएगा, फर्स्ट लेयर, एक और लेयर बना लेगा, इसको बोलेंगे फिर सेकेंडरी फॉलिकल। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब ये ग्रोथ कर रहा है, प्राइमरी oocyte क्या कर रहा है, ग्रोथ करता जा रहा है, मतलब आकार को, अपने साइज को क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, लेकिन कोई डिवीज़न नहीं हो रहा, ग्रोथ फेज में कोई भी डिवीज़न नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज कैसे होगा, वो अपने चारों ओर क्या बनाता जाएगा, वॉल बनाता जाएगा, लेयर बनाता जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक और लेयर बना लेगा। लेकिन यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेयर बनाने के साथ साथ अंदर एक एंट्रम भी बन जाती है, एक एंट्रम बन जाती है, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बनती है। ठीक है, अब फ्लूइड फील्ड कैविटी वाली जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, अभी टर्शरी फॉलिकल बन गया। अब क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। ठीक है, अब मैं ग्रेफियल फॉलिकल की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, एक एंट्रम होगी इसके अंदर, और ये क्या होगा, सिंपल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, ये क्या होगा, ग्रेफियल फॉलिकल बन गया। इसके चारों ओर क्या आती है, एक लेयर बनी हुई है प्राइमरी oocyte की। ठीक है, यहाँ तक तो क्या हो रहा है, प्यूबरिटी से पहले हो रहा है, आगे बात समझ में। अब क्या हो रहा है, ये ग्रेफियन फॉलिकल बाद में फिर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट जो होल्ड हो चुका था वो कहाँ स्टार्ट होगा, यहीं आके स्टार्ट होगा। इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीज़न। अनइक्वल डिवीज़न, अनइक्वल डिवीज़न में क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, अब डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट था वो होल्ड कहाँ हो गया था, जब प्राइमरी oocyte बने थे, कब, फॉइटल स्टेज के अंदर। और कौन सी फेज में आके वो रुक गए थे, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, लेप्टोटिन के अंदर आके वो रुक गया था। अब वो
मियोसिस फर्स्ट क्या होगा, वापस से स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट वापस प्यूबेरिटी के टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, डिवीज़न करेगा। डिवीज़न करने के बाद ये मान लो ग्रेफियन फॉलिकल है, ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब ये डिवीज़न करेगा तो एक तो लार्ज साइज की सेल बनाएगा और एक स्मॉल साइज की सेल बनाएगा, ठीक है। लार्ज जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब आपको पता है 11th के अंदर आपने स्टडी की थी भी, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte क्या था, डिप्लॉइड था। सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड इन नेचर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, कम हो गए। और एक जो स्मॉल स्ट्रक्चर बन रही है उसको बोल रहे हैं पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, ठीक है। प्राइमरी oocyte ने डिवीज़न किया, मियोसिस फर्स्ट को स्टार्ट किया, वापस से मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज लेप्टोटिन के बाद स्टार्ट हो गया। होल्ड कहाँ हुआ था, लेप्टोटिन के अंदर। वापस कहाँ स्टार्ट हुआ, प्यूबेरिटी टाइम के अंदर। प्यूबेरिटी टाइम के अंदर मियोसिस फर्स्ट फिर से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते उसने क्या किया, प्राइमरी oocyte ने डिवाइड किया। कौन सा डिवीज़न हुआ, अनइक्वल डिवीज़न। इसको अनइक्वल डिवीज़न क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सेल तो छोटी बन रही है और एक सेल क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। तो इस डिवीज़न को क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिवीज़न बोलेंगे। पोलर बॉडीज़ क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। और सेकेंडरी oocyte क्या करता है, इसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, सब कुछ होता है। और ये अपने चारों ओर क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है। इस लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। इस लेयर को क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है, सेकेंडरी oocyte, उसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। यहाँ तक मियोसिस फर्स्ट हो गया। अब मियोसिस सेकंड कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म आया, मैच्योर। अब इसको क्या बोलेंगे, जब जोना पेल्यूसिडा वाला ये सेकेंडरी oocyte है, इसके चारों ओर क्या है, एक जोना पेल्यूसिडा बन गया। ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या हुआ, रैप्चर हुआ। रैप्चर होने के बाद क्या हुआ, ये डेज हो गया, मतलब फट गया। फटते ही क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर के साथ बाहर आ गया जोना पेल्यूसिडा के बाद। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। जब ग्रेफियन फॉलिकल्स रैप्चर होने के बाद फट जाता है, फटने के बाद सेकेंडरी oocyte बाहर निकलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन कब होता है, जो मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके 13th और 14th डे को ये स्टार्ट होता है, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ पे मैच्योरेशन साइकिल हार्मोनल कंट्रोल के अंदर। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ या इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म आया। स्पर्म क्या होता है, बिल्कुल छोटी स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम होता है। न्यूट्रिटिव मटेरियल इतना होता नहीं है। लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये बहुत सारा मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल लेके बैठा अपने पास। किसके लिए, मियोसिस सेकंड करने के लिए। मियोसिस सेकंड कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होगा। मियोसिस सेकंड भी होगा, उसके बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के बाद क्या होगा, पहले मोरुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुलेशन होगा। गैस्टुलेशन होने से पहले ब्लास्टुला जब बन जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है। इम्प्लांटेशन करने से पहले जो जाइगोट को न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कौन दे रहा है, ये सेकेंडरी oocyte दे रहा है। अपना टिफ़िन खुद पैक करके पहले से लेके जा रहा है यूट्रस के अंदर। मतलब जब तक प्लासेंटा ना बने तब तक उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता रहे, तो वो कौन कर रहा है, सेकेंडरी oocyte। जैसे स्पर्म ने इसके साथ फर्टिलाइज किया, क्या बनाया इसने, जाइगोट बना दिया। जाइगोट क्या होता है, 2n इन स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट बन गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन के अंदर होता है, एम्पुला रीजन के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन, ठीक है। फिंगर लाई प्रोजेक्शन कहाँ होते हैं, इनफंडिबुलम के अंदर। इस्तेमस कौन सा पार्ट है, यूट्रस के निकलने वाला पार्ट क्या होता है, इस्तेमस पार्ट होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्या 7th या 8th देखो क्या इम्प्लांटेशन होता है, अंदर जाता है यूट्रस के अंदर। वहाँ तक जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कौन दे रहा है इसको, सेकेंडरी oocyte प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि स्पर्म के पास इतना न्यूट्रिशन नहीं होता, सिर्फ एक्रोसोम है। एक्रोसोम के पास क्या होता है, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो जेना पेल्यूसिडा क्या कहते हैं, गला देते हैं और एंट्री कर जाते हैं
इसके अंदर सेकेंडरी ओसाइड या सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है, इसके साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद फिर क्लीवेज स्टार्ट होता है, मोरूला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन यूट्रस के अंदर होता है। गैस्ट्रुलेशन के बाद जर्म्स लेयर्स बनती है। ठीक है, 3 जर्म, एक्टोड्रम, मेसोड्रम एंड एंड्रोड्रम बनती है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गन फॉर्मेशन इन द फॉइटस। ठीक है, तो ये एक वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड है। ठीक है, इस वीडियो के आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, तब ये पूरा आपको समझ आएगा। मियोसिस फर्स्ट कहाँ होल्ड हुआ था, मियोसिस फर्स्ट कहाँ वापस स्टार्ट हुआ था, क्यों होल्ड हुआ, कितने नंबर थे ऊगोनिया के, लेकिन रिड्यूस हो गए, कितने रह गए। ठीक है, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक पोलर बॉडी यहाँ बन गई थी, ये पोलर बॉडी फिर से डिवीजन करके 2 पोलर बॉडी बनाती है सेकेंडरी, जब मियोसिस सेकंड होता है। लेकिन ये भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी 3 पोलर बॉडी बनती है, तीनों ही क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब एक चीज़ आपने देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कितने स्पर्म बन रहे हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन ओवम कितना बन रहा है, एक ही ओवम बन रहा है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेशन के टाइम या इंटरकॉर्स के टाइम क्या होता है, वेजाइना में, यूट्रस में आते हैं और वहाँ से वो फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सिर्फ एक एग के साथ सिर्फ एक स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो डिपेंड किस पे करता है, मेल पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेल के पास अपने सेक्स डिटर्मिनेशन इन 10th क्लास में पढ़ा था, मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास XX है। अगर ये X इस X से मिल जाए तो क्या होगी, गर्ल चाइल्ड, और अगर ये Y X से मिल जाए तो बॉय चाइल्ड। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज डिपेंड ऑन मेल पार्टनर। सो ओके स्टूडेंट, इफ यू एनी डाउट then you tell me on WhatsApp. Next video we study about menstruation cycle and the hormonal regulation of the menstruation cycle. Thank you student.